इवन कॉमर्स स्टूडेंट इफ यू सी, उनको आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बात करो ना, रियल वर्ल्ड में दे हैव नो क्लू. Ladies and gentlemen, today in the Goela House of Finance, we have Sahil Bhadvia. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट क्यों है? बिकॉज सबसे पहली चीज, इसको आपको सुनना नहीं है, आपको अपने पेपर्स वगैरह अपने इकट्ठे करने हैं, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट गाइडलाइन ऑन हाउ अ बिगिनर शुड स्टार्ट फंडामेंटल एनालिसिस. टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना है, गवर्नमेंट न्यूज सुननी है, न्यूज पढ़ना इरिटेटिंग है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वेट किस चीज कर रहे हो? हेडफोन्स लगाओ, आराम से बैठो, पॉडकास्ट अब शुरू हो रहा है. Okay, so Sahil, first of all, thank you so much for coming to the House of Finance. It's, I remember we met at Mumbai at that event, or I personally, why I follow you, because I feel कि your YouTube videos, you know, fundamentally they're so refined, they're so well researched. मुझे बहुत मजा आता है देख के. Generally, I enjoy it a lot. अब I also saw that you're from Udaipur, है ना? Yes. So, अच्छा, tell us about Udaipur. Tell us how is it as a city? कैसा है? Oh yeah, Udaipur. What should I say? अभी तो it is very popular. ये जवानी है दीवानी. I hope you remember, right? शादी season I must be sure tourist तो भर जाता होगा वहाँ पे. It is, I think, probably first or second number after Goa. I mean, similar to Goa. So wedding destination है. You know, palaces, forts, lakes. What else do you want? It's all royal, right? तो ब्यूटीफुल in that city. I don't know, बताऊं, जैसा remember मैं फतेह सागर गया था. लकीली मैं तब गया था जब लेक भरी हुई थी. It was amazing. बताऊं, आसपास सब बैठे हुए हैं एंड कोई they're not hooligans टाइप कुछ नहीं हो रहा. सब आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं. Their college students also, their families also. There's a very positive vibe to the entire city. You ask any Udaipurite, Fateh Sagar is their second home. Is it? Yeah. किसी को कहीं पे भी मिलना है, just visit Fateh Sagar. I mean, हमारा by default होता था. After school, college, I mean, I have grown up here. So, you ask anyone, Fateh Sagar is like by default. कहाँ मिलना है? Fateh Sagar. That's it. Wow. So, how often do you go? अभी भी you go oftenly? Oh yeah. I went yesterday. अरे तो guys, if anybody wants to bump into Sahil, आपको पता है? फतेह सागर में एक दिन spend करो. I'm sure Sahil एक भी तो आ जाएगा वहाँ पे. Definitely. अच्छा, so tell us about your history. आप कहाँ से पढ़े? Tell us about your education. आपके family background में क्या था? Just tell us about that. So basically, my father was a banker. He got retired from Bank of Baroda. तो transferable job थी. But Udaipur के around ही transfer था. But then he got back to Udaipur way back in 2002, 2003. उसके बाद से here, and this is my hometown actually. तो got settled down and एजुकेशन तो वो ही एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में कि पढ़ाई में ठीक ठाक थे तो बाय डिफॉल्ट 10th में ठीक नंबर आ गए. तो व्हाट इज ठीक ठाक? साइंस फाइनेंस साइंस ले ली सबने. How much did you get in 10th? I want to see what is ठीक ठाक for you. So I am one of those few people who got more marks in 12th than 10th. जनरली 10th में लोगों के ज्यादा होते हैं. मेरा क्या था, मेरा 10th और 12th सेम था. I thought दोनों में 70. I thought I was rare, but I've never heard anyone getting more marks in 12th compared to 10th. Right. So I got 82 in 10th. I got 87 in 12th. Okay. And that too in science. Yeah. And in PCM it was above 92 and 90 above 90. Yeah. So that way मेरा math science थोड़ा ठीक था. मेरा हिंदी और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था. But yeah. And I think मेरे blood में है finance. I tell you why, because पापा बैंक में थे इतने साल. Plus I belong to Udaipur. तो Udaipur is Mewar region. North में you have got Marwar. And you know Marwadis, right? और South हमारे नीचे है गुजरात. तो the hub of entrepreneurs, right? तो वो एक blood में है कि यार finance, and that I realized it very late. तो हुआ यही कि यार got science and then obviously जो next transition होता है by default engineering. वो टाइम था यार, तब वो आईटी का बहुत बूम था. Which year is this? जब आपका so I got passed out from 12th in 2007. उस समय तो आईटी was a craze. I remember पूरा 2002 जो बूम चल रहा था. It was a massive. So and especially मेरे 2 cousin भी यूएस चले गए and उस टाइम पे बड़ी बात होती थी कि यार तो बस वही था और ज्यादा तब समझ तो थी नहीं क्या करना है, कोई गाइड करने वाला ऐसे था नहीं. और पापा सबके फ्रेंड्स देख रहे हैं आसपास सभी आईटी में जा रहे हैं तो आई डिड दैट. एंड आई टेल यू व्हाई,
एक्चुअली उस टाइम में ना कंप्यूटर्स का बहुत क्रेज शुरू हो गया था और लगा कि यार मुझे भी शायद इंटरेस्ट है। वो बात अलग है कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को गेम्स खेलना पसंद था। आई वाज नॉट इनटू कोडिंग एट ऑल एंड दैट आई रियलाइज्ड क्वाइट लेट व्हेन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग। तब लगा यार कोडिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड देन स्टिल मैंने जॉब किया 2 साल टीसीएस ज्वाइन किया एंड आई वर्क देयर। उदयपुर में थे टीसीएस में भी? सॉरी, आप उदयपुर में थे व्हेन यू वेंट? नहीं, so I was in TCS, I was in Pune. Okay. Yeah, so I worked there, but वही है यार, मजा नहीं आ रहा था। I was into business side. थोड़ा मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार ये मेरे को कोडिंग कंप्यूटर के सामने बैठ के नहीं करना है। ये सारे मेरे को थोड़ा बिजनेस। I also realized this because उदयपुर में जितने भी मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ, all of them from business family. So एक शायद है, मतलब you'll see 90% people in उदयपुर, they either have a business or they're planning to start one. Yeah. Right. तो then I realized कि यार next transition is by default again कि यार कुछ नहीं करना है तो MBA कर लेते हैं। तो I did that, MBA कर ली and then I actually वो टाइम था, उसके बाद तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, it's not just about education, आपको पैसा मैनेज करना भी आना चाहिए। क्योंकि तब मैं जॉब करने लग गया, पैसे कमाने लग गया, तो लगा यार कि कुछ पता ही नहीं है। I mean, it is so unfortunate कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यार आप अगर साइंस और आर्ट से हो तो आपको कॉमर्स फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं, राइट? और एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन कॉमर्स स्टूडेंट इफ यू सी, उनको आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बात करो ना रियल वर्ल्ड में, दे हैव नो क्लू। या सर बताऊं, दिस इज द थिंग, आप मानोगे नहीं, मैं तो कॉमर्स में था, ठीक है? फिर मैं कॉलेज गया था तो एसओएल से ओपन डिग्री जो होती है, आई डिड बीकॉम पास। मुझे प्रॉपर्ली बैलेंस शीट पढ़ना ना आया है एट द एज ऑफ 21, because commerce students, I'll tell you होता क्या है, entry रटी exam pass, entry रटी exam, this is the thing. So if you ask a BCom graduate also ना कि read this balance sheet, वो शायद 90% chance वो नहीं पढ़ पाएगा, right? I think हाँ, our education system definitely needs to be more practical, अभी theoretical थोड़ा ज्यादा है, just to pass, बहुत ज्यादा है। स्पेशली मनी मैनेजमेंट यार, ये कैसी स्किल है यार, सबको आनी चाहिए। स्पेशली द फैक्ट कि यार हमारी कंट्री में स्पेशली इतने स्कैम्स होते हैं, हर दूसरा बंदा इफ यू आस्क ना कि वो किसी ना किसी वे में उसने पैसा लूज किया होगा, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, ग्रीड बहुत ज्यादा होता है और कुछ आइडिया नहीं है। देख लो LIC, कोई भी, नॉट LIC, इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, अगेन इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट बट कौन सा लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एजेंट्स कोई भी पॉलिसी चिपका देते हैं उनको उनके कमीशन के लिए, या इन जनरल भी आप देखो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में आप गलत प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हो। तो बेसिकली मोर देन मेकिंग मनी, net if you ask me, in India still people are losing money. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार आप पैसा कमाना तो दूर की बात है यार, पैसा गवा रहे हो। ये बताऊं, you're right, because एक तो जो अभी हम पहले ही बात करते कि मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे इंडिया में मनी मैनेजमेंट मतलब सेविंग, बस सेव करो, ये दैट इज नॉट मनी मैनेजमेंट। यू हैव टू प्लेस इट कि वो आपके लिए सही जगह अर्न करे। और इंश्योरेंस में भी राइट, मतलब आई डोंट हैव अ डेटा ऑन दिस, बट आई थिंक जितनी फाइनेंशियल मिससेलिंग इंडिया में होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, आई डाउट शायद किसी और देश में होती होगी। एंड आयरॉनिक चीज ये है दैट इंडियंस आर ग्रेट एट मैथमेटिक्स, दे आर ग्रेट एट अलजेब्रा, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। Exactly. That's absolutely true. So think about this यार, कि हम 8th 9th क्लास में आई थिंक हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट किसी को कंपाउंडिंग का एक्चुअल पावर जो होता है नहीं पता होता है। वो बस एग्जाम पास कर लिया, खत्म, उसके बाद हम भूल जाते कंपाउंडिंग होता क्या। सो नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सबको आती है, लेकिन वो ये रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल रिटर्न में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो ये इतनी रियल वर्ल्ड की जो छोटी छोटी चीजें होती है लोगों को आती नहीं है। दैट वाज द टाइम कि मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ना वो वाली लाइफ नहीं जीनी है कि 60 तक जॉब, वो सब, क्योंकि और आप इस समय जब रियलाइज हुआ किस एज पे थे आप, कितने? I got into my job after MBA, तो it was around 25, at the age of 25. ठीक है, you were 25, ठीक है। या तो 25 की एज में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को वो ट्रेडिशनल लाइफ नहीं जीनी है। तो मैंने जब फिगर आउट किया कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मेरे को एक चीज जो रियलाइज हुई, मैंने बहुत लोगों से पूछा। ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपने आसपास फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव सबसे पूछते हैं कि यार कैसे करें। टू माय सरप्राइज बहुत कम, इनफैक्ट किसी ज्यादातर लोगों को तब कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट दे डिडंट इवन नो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, डायरेक्ट रिटर्न, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर का डिफरेंस। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2014-15। उस टाइम पे यूट्यूब चैनल भी नहीं होते थे, तो ऐसे नॉलेज भी नहीं था लोगों को उस समय। YouTube was for TVF and AIB, तो फनी कंटेंट होता था YouTube, it was not finance at all. Right.
ये बताऊं साहिल, यू एक्चुअली राइट, बताओ आई विल टेल यू। अब जैसे इस मामले में मैं तो फॉर्चुनेट था, ठीक है, क्योंकि माय डैड वाज इनटू स्टॉक मार्केट, सो आई बचपन से मतलब मनी मैनेजमेंट ना हमें आइडिया था। और मुझे बड़ा फनी लगता था कि मेरे दोस्त कभी कभी क्या करें, दे यूज्ड टू लाफ एट मी, क्या बे यार ये क्या अपने बैंक अकाउंट लेके बैठ गया है, व्हाट आर यू डूइंग। और आई रियलाइज कि टिल 25 26 नो, जो भी, बिकॉज सबका यंग करियर स्टार्ट ही होता है उस समय, सबका ये होता है कि बस पैसे आ रहे हैं, वो बैंक में इकट्ठे हो जा रहे हैं, एंड दैट डिसीजन कि उनको गिल्ट होता है कि यार देखो हमें इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड सीखना है, और बहुत लोग आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, बट वो उसको डिले करते रहेंगे कि हाँ हाँ करते हैं, अरे एक दिन बैठेंगे, और जबकि उसके अंदर गिल्ट है कि यार आई हैव कुछ तो मैं प्लान करूं। व्हाई डू यू थिंक दैट गिल्ट इज देयर? मतलब व्हाई डू यू थिंक कि इवन व्हाइल नोइंग द प्रॉब्लम बहुत लोग एक्शन भी नहीं लेते? आई थिंक हमारा ना हमारे ह्यूमंस के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है रिवॉर्ड्स इन शॉर्ट टर्म। हमको इमीडिएट रिवॉर्ड्स चाहिए, दैट इज द रीजन इफ यू सी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, फोटो अपलोड किया, लाइक्स, राइट? तो रिवॉर्ड इन शॉर्ट टर्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे अंदर इतना ज्यादा इंग्रेन्ड है। इफ यू लुक एट इट, एनीथिंग, वेट लूज करना है, it's not a short term journey, it's a long term journey. Muscle build करनी, it's a long term journey. पैसा build करना, it's a long term journey. तो लोगों को ना वो पेशेंस नहीं है, लोगों को क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड चाहिए। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है यार। लोगों को क्या लगता है ना, माइंडसेट यही है कि यार 10 साल बाद किसने देखा यार, अभी इंजॉय करो, सो यू लिव ओनली वंस। तो ये जो योलो जनरेशन है ना, इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको ना वो लगता है कि यार बस इमीडिएटली मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई फील कि ना लोग उस डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले करते रहते हैं, सोचते हैं यार अभी इंजॉय कर लेते हैं, 2 साल बाद 5 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन। आई थिंक यू राइट। अभी एक इंडिया में होता है कि यार अभी तो हम बहुत यंग है, देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बट we lose that essence of compounding, only खत्म हो जाता है। And I tell you one more reason कि यार होता क्या है ना, we get inspired and influenced by the people around us. तो यूथ में जनरली क्या होता है कि यार they look at things that are cool and for them somehow investing is not cool. कि यार पैसा आ रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, it's not cool, right? You have to party, you have to buy gadgets, right? गाड़ी, phone, iPhones, right? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यार आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, सबको देख रहे हो, सब एंजॉय कर रहे हैं, एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वी ऑल नो कि यार क्या हो रहा है। एक देखा यार फ्रेंड वेकेशन पे, एंड इट गेट्स यू गेट दैट अर्ज टू गो फॉर वेकेशन, यू गेट दैट अर्ज टू पार्टी, एंड यू फील लाइक यार यू आर लिविंग द मोस्ट बोरिंग लाइफ एंड एवरीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम यू इज हैविंग द लाइफ ऑफ देयर टाइम, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम शॉर्ट टर्म में हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होके रिवॉर्ड को शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है। इन्वेस्टमेंट में भी लोग ये मिस्टेक करते हैं। यू राइट, बिकॉज़ बताऊं, एक तो सबसे पहली चीज मोटिवेशन ही थोड़ी मिसप्लेस्ड कभी कभी मुझे लगती है बहुत यंगस्टर्स की। वो गाड़ी मतलब मर्सिडीज दिख गई तो बस मर्सिडीज दिख गई, तो दैट इज नॉट द वे शुड बी। आई थिंक बिल गेट्स का कोट था, आई थिंक समराइज द एंटायर थिंग कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 year but underestimate what they can do in long term. Yeah, right? तो मेक सेंस कि एक साल में तो ट्रेड करके कि भाई वो गाड़ी आ जाएगी, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, और प्लान्स क्रेजी, बट व्हाट दे कैन एक्चुअली अचीव इन 10 years इज सो मच ग्रेटर कि उसको बहुत हम सब अंडरएस्टिमेट करते हैं। That's what the thing, the power of compounding. I keep saying everyone कि यार आप don't think कि यार मेरे को 6 महीने में 1 साल में पैसा डबल करना है। Even if you can get 15% return, which I believe is pretty much achievable, 15% year on year CAGR, अगेन वो ऐसा नहीं कि हर साल 15% मिलेगा, इट्स नॉट एफडी। तो वो माइंडसेट नहीं रख सकते आप कि हर साल 15, बट द पॉइंट इज ऑन एन एवरेज इफ यू कैन गेट अ CAGR रिटर्न ऑफ 15% फॉर नेक्स्ट 15-20 years, you are going to become rich. I mean, you are going to create lot of wealth. बट वो पावर I'll tell you this, इसमें इतना इंटरेस्टिंग था, तो रिसेंटली आई वेंट टू अ फैमिली फ्रेंड, तो अब आजकल थोड़ा बहुत यूट्यूब चल गया ना, तो ऑब्वियसली पीपल आस्क, तो मेरा भांजा है, ठीक है, ही जस्ट केम इन 12th, तो ऑब्वियसली इस एज में आपको देखा ही है, आपके ऑडियंस भी होगी, स्टॉक मार्केट बहुत है, वी वेरी एक्साइटेडली आस्क्ड मी कि अच्छा हर्ष, तो भैया आपका व्हाट इज द रिटर्न इन स्टॉक मार्केट, हम 1 to 1 कितना करते हो? तो मैंने बोला यार आई मेक श्योर कि मैं आई कंसिस्टेंटली बीट द इंडेक्स, तो अगर मैं महीने का 5-6% कमाऊं इट्स गुड फॉर मी ट्रेड करके। ये देख, अरे मतलब ही वो एक्सपेक्टिंग आंसर की 30% 50%, तो ये है मतलब इवन इफ यू बीट द इंडेक्स तो यू आर अप देयर, यू आर एट द टॉप ऑफ द पूरा एनिमल चार्ट, बट ये बहुत लोग रियलाइज नहीं करते। एंड यू राइट कि आई थिंक ये तो मैं भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि बिफोर स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो वन शुड नो हाउ टू मैनेज मनी, दैट इज द लेवल 1, फिर यू गो टू द
level 2 Level that is two. stock market. That's what risk So management. when did the level 2 hit for you? तब Sorry? आपको when was the level 2 hit for you? मतलब money management चलो you're 25. थोड़ा बहुत आइडिया पड़ा कि यार देखो मुझे पैसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए, I should learn how to manage money. फिर स्टॉक मार्केट्स कैसे आया? यार स्टॉक मार्केट जब पैसा समझ में आ गया कि इन्वेस्ट तो करना ही है, तो ऑप्शन एक्सप्लोर करे, और ऑप्शन जब एक्सप्लोर करे तो ज्यादा ऑप्शन थे नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न एफडी में उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा नहीं था, 7-8%। एंड उस वक्त फिर जब समझ में आया कि यार म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन, तो देखा अच्छा इसमें इतना रिटर्न है, एंड देन आई केम अक्रॉस ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट तो आना ही था। तो जब वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा ना, उस टाइम पे आई रिमेम्बर मैंने एक दो कंपनीज के बारे में पढ़ा था कि ₹10,000 इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस और आइशर मोटर स्पेशली, कि इंस्टेड ऑफ बाइंग एन आइशर मोटर बाइक, इफ यू हैड बॉट द शेयर्स यू वुड हैव मेड crores। तो दैट रियली मेड मी फैसिनेटेड कि यार ये कैसे इतना वेल्थ क्रिएट हुआ, कि यार तो मैंने तब ये जर्नी देखी ब्लू चिप कंपनीज की कैसे, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग इन इन्फोसिस आफ्टर MBA। But how did you manage? क्योंकि being a science student, didn't you find, क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि they find balance sheets and numbers intimidating, डर लगता है, तो आपको ऐसा हुआ कुछ? Right. So in my case, luckily I learned small basics of balance sheet and P&L, all of this during my MBA. तो वो मैंने चीजें तब थोड़ी सी समझ ली, but honestly majority of my learning came from the books I have read, from the blogs I read. तो luckily I came across the right set of people. I got inspired by Warren Buffett. Honestly, मैं जितना, and anyone who get into investing, this name Warren Buffett comes up, right? So, and not just Warren Buffett, lot of people, Peter Lynch, Charlie Munger. तो इन लोगों के को जब मैंने पढ़ा ना, I believe कि एक अच्छे successful investor, or not just investor, any person, if you really want to succeed in life, just read the journey, just go through the journey of those successful people. उन्होंने क्या किया उनकी लाइफ में, कैसे सक्सेस उन्होंने अचीव करी, ये चीज आपको उनकी जर्नी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में ब्लॉग्स और ये पढ़ते हो ना तो समझ में आ जाता है। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई, एंड देन आई स्टडीड देयर जर्नी, एंड उस वक्त मुझे समझ में आया कि, एंड स्पेशली वॉरेन बफेट का कैसे वो जो लॉन्ग टर्म में, यू नो, आई रिमेम्बर 50-55 की एज तक ही वाज नॉट इवन अ बिलियनर, एंड देन बूम, राइट? तो ऐसे कुछ स्टार्ट है कि he earned 60 to 70% of his wealth after the age of 60, ऐसे कुछ। राइट। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि यार आई रियलाइज्ड कि यार स्टॉक मार्केट में यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ। ऑब्वियसली उस टाइम पे कुछ भी नॉलेज नहीं था, नॉट इवन 1%, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई मेरे को बोले कि नहीं आई लर्न एवरीथिंग, even if you get out from the top MBA colleges anywhere, you learn you spend n number of hours learning. Unless you get into the market and you get that experience, it is not going to work out. So it is a mix of both. आपको knowledge होना चाहिए, and on top of that experience, and that's what I also did. कि यार I started learning, at the same time I started investing, and obviously nobody can say that the person has made all the right decision in investment. Of course. अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, या the person is completely. मैं तो बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि stop expecting this from people कि उसको सब कुछ पता होगा, because there's no one in the world who can tell you everything about stock market. Right. इतना huge है। and दूसरा बताऊँ, you are right, ये काफी interesting point था। अब साल आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए रही because how from a science student, ठीक है, आपके पास कोई भी स्टॉक मार्केट्स में ऐसा कोई बंदा था नहीं who was nothing, ठीक है, you had this realization when you were 25 कि यार कुछ तो पैसे करना चाहिए, and then you read books, क्योंकि आसान नहीं होता है, इंटरनेट होता है। I remember मैंने सबसे पहले जोश में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उठा ली, मेरे तो होश उड़ गए थे। and I feel उस बुक की बहुत लेयर्स हैं, उसको अभी भी दो बार पढ़ता हूँ, I get more out of it, उसकी लेयर्स हैं, like जैसे बैटमैन डार्क नाइट मूवी, उसकी लेयर्स है, every time you see it you get a different perspective, same thing वैसे। No, I also tell everyone कि यार if you want to start, don't just go with intelligent investor, क्योंकि जोश में start करोगे and you will lose interest. There can never be a perfect start in stock market. ऐसा possibly नहीं है कि you are ready, and that there can never be a perfect start in stock market. Absolutely. अब you came into fundamental analysis, तो दिख रहा है hardcore, right? Yeah. अब see fundamentals ना, I get it कि अगर कोई बंदा सीखना चाह रहा है ना, and अगर YouTube में भी सर्च करेगा, information है but इतनी scattered है कि दिन में तारे आराम से देख सकते हैं, and very easily he can get scared कि यार ये मेरी बस की बात नहीं है, right? So where do you feel, how would you advise कि यार अगर कोई 25 year old है, बोला कि मुझे मार्केट्स में आना है, and कि मुझे फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज करना है, what are the
3 basic things you would say कि यार इससे शुरू करो to learn about fundamentals? Right. I think first and foremost step is to keep a track of market. Economy में क्या हो रहा है? How economy is doing, because eventually it is the macro environment that drives everything. कि यार Indian government के क्या moves हैं, Indian economy का क्या future growth prospect But है. how to find this? Is there any metric जो आप follow करते हो कि I look at the GDP growth or the currency growth, ऐसा कुछ metric? See, honestly, as such कोई factor नहीं होता है. It's just about having a habit of reading news. वो हैबिट बनानी होगी न्यूज पढ़ने की, एंड इट इज नॉट दैट आपको ओवरनाइट सब कुछ आ जाएगा. धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 ईयर आपको एक मार्केट का होल्ड आएगा कि यार अच्छा इस मूवमेंट से लेट्स से अगर ऑयल की प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट कैसे ये चीजें कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, या लेट्स से एफडीआईज का मूवमेंट, तो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग हमको अंडरस्टैंडिंग होती है. एंड देन स्पेशली द फैक्ट कि फ्यूचर क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली यू गॉट टू रीड अ लॉट. कि यार जब आप न्यूज में पढ़ते हो ना कि यार इस कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया या इस कंपनी की ये फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उससे बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है. कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, तो वी ऑल नो कि यार कोविड के बाद क्या हुआ, कैसे द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन. तो फ्यूचर ग्रोथ्स आर प्रीटी ब्राइट, राइट? तो एंड स्पेशली द फैक्ट कि इंडिया में तो इंडियन कंपनीज आर द वर्ल्ड लीडर, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो and the leaders, obviously if you are the leader you are going to command a premium and all of that. So basically the point is, step number 1 I keep saying कि start reading the news, understand the market, macro. इसमें ना I have a question. अब जैसे I'll tell you, एक तो आपका पॉइंट सही है, मतलब I feel macro economics में you have to economics में connect the dots connect करना बड़ा जरूरी है. हर चीज को डिमांड सप्लाई में तोड़ दो. It's like exploring a city. पहले एक एरिया देखा, फिर वो देखा, फिर हल्की हल्की करके आप उसको खुद कनेक्ट कर लोगे दिमाग में कि रास्ते किधर है. करेक्ट. बट एक चीज ना ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बोलेंगे चलो ठीक है आई विल स्टार्ट ट्रैकिंग द न्यूज. मैं आपने जो बोला कि पहले मैक्रोस इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है वो देखते हैं. प्रॉब्लम ये होती है न्यूज़पेपर खोला, वो बड़े बड़े शब्द, गुस्सा आ जाता है, मतलब, और एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, वो यू फील इरिटेटेड. फिर यू सी द न्यूज, समझ नहीं आएगा. मतलब नेचुरली जो बंदा बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं है, आई थिंक फाइनेंस भी जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और एक इरिटेशन होती है अंदर से. आप समझो कि क्या हो रहा है. व्हाट वुड यू रेकमेंड टू दैट पर्सन? राइट. तो उसके लिए आई वुड से कि यार एटलीस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर दैट थैंकफुली टुडे देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, राइट? तो यू हैव ऑप्शन. आई मीन यू कैन रीड बुक्स. अगेन उसमें भी प्रॉब्लम यही होगी कि यार वो टर्म्स इतनी ज्यादा है कि एक नए पर्सन को नहीं आ सकती. तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ मेंटोर. कि यार इफ यू इनरोल इन अ कोर्स वेयर यू हैव समवन हु कैन गाइड, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट. कि यार आपने एक कोर्स इनरोल किया, आपने एक मेंटोर से आप मेंटोरशिप ले रहे हैं, and then you are reading the news and all of that. Whenever you have any doubt, you can come back and you can ask your doubt. You can have someone to back you up कि यार कोई क्वेश्चन पूछने के लिए. Yes. So if you can get into a organized course, because YouTube में problem यही है. I mean, YouTube is brilliant, there's no doubt. But connecting the dot and having that structured course, everything is scattered. तो एक थाली में इतनी सारी चीजें क्या मैं कंज्यूम करूं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. तो पहले ये फिर वो, तो ABCD जो है ना, आई थिंक फॉर दैट इफ यू कैन इनरोल इन अ कोर्स एंड देन ऑफ कोर्स यू स्टार्ट ट्रैकिंग द मैक्रोज एंड इंडियन गवर्नमेंट. सो दैट फॉर अ कोर्स एक आदमी जैसे वो कॉलेज में कोई MBA सीख रहा है तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखता है, राइट? तो दैट कैन हेल्प यू. ठीक है, तो पहला ट्रैकिंग द मार्केट. ठीक है, हाउ टू डू दैट? रीडिंग द न्यूज और जस्ट कनेक्टिंग डॉट्स के FIs जा रहे हैं तो क्या होगा, क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से किससे कितना फर्क पड़ता है. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट यू विल लर्न एवरीथिंग. इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज लाइक यू राइटली सेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द डॉट्स कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और वो ओवरनाइट नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम. आई रिमेंबर मुझे पहले मैं बड़ा इरिटेट हो जाता था कि यार बैंक इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन क्या कनेक्शन है एकदम, मतलब अब हल्के हल्के करके व्हेन यू अंडरस्टैंड इट तो इट्स सो सिंपल कि इतना सिंपल लॉजिक है, बट इट टेक्स टाइम टू जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स वंस. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक हर्ष प्रॉब्लम क्या है ना हमारे यहाँ पे अभी तक, स्पेशली क्योंकि एजुकेशन में सिस्टम में ही वो नहीं है, तो क्योंकि हम उस टर्म से हमने कभी सीखा ही नहीं है, बीइंग अ नॉन फाइनेंस गाय स्पेशली, कि हम देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सामने वाला जो बताता है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज देयर इन टर्म्स एंड कंडीशन. तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कोई भी चीज हमें सामने से अगर क्लियरली बता देगा ना तो शायद उसका प्रोडक्ट नहीं चलेगा.
राइट? तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बताना भी नहीं चाहते अच्छे से, बट थैंकफुली नाउ देयर आर लॉट ऑफ। वो जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं सीएनबीसी में थोड़ी चलो इंटरव्यू देखूंगा, ठीक है, एंड आई वॉच इंटरव्यू। एक तो मेरे साथ ये ना कि इफ यू जस्ट टॉक टू मी इन इंग्लिश ऑल द टाइम, तो एक पॉइंट पे मैं वो ब्रेक आई विल लूज द चेन, तो मुझे कुछ हिंदी भी चाहिए, थोड़ा वो होता हाँ है, हाँ हाँ एंड इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। वो बोलते हैं, मैंने कहा यार ट्रैक लूज हो गया, फिर आई एम थिंकिंग कि वो क्या बोला था, आई एम ट्राइंग टू जंबल दैट आउट, वो आगे बढ़ गए, और समय टीवीज में रिवाइंड हो गया तो कुछ होता नहीं था। सो हाँ, यू राइट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वंस इट्स कनेक्टेड तो यू आर देयर, और वो हो जाएगा, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एंड दैट रिक्वायर्स पेशेंस। दैट रिक्वायर्स पेशेंस। या ठीक है, तो फर्स्ट 3 स्टेप की कोई फंडामेंटल कैसे स्टार्ट करता है। सबसे पहला ट्रैकिंग द मैक्रोस बड़ा वर्ड हो गया, इंडियन इकोनॉमी लिख देते इन इंडियन इकोनॉमी, या इंडियन इकोनॉमी देख लो कि आई क्या थिंक हो रहा है, क्या फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, गेट इनरोल्ड इन अ कोर्स, First स्ट्रक्चर्ड step. कोर्स, क्योंकि that will give you and find a mentor, so that will help you sort lot of things, Yeah. because वो First बहुत step, important है। Second step, tracking the economy. Third Yeah. step, what would you say? Third step is doing the hardcore research, reading the annual reports, the presentations and all of that. I strongly believe कि यार हम हमारा पैसा जो हार्ड एंड मनी है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट लगेगा है। True. ऐसा नहीं है कि यार हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं और एफर्ट नहीं डाले, एंड इस एफर्ट का ना बहुत बड़ा रिवॉर्ड, बिकॉज सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना तब एवरीवन एंजॉयज द पार्ट, बट रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब मार्केट गिर रहा हो, क्योंकि दैट टाइम यू विल हैव दैट कन्विक्शन कि यार वो स्टॉक जो है ना मैंने इन्वेस्ट किया था गिर गया है, लेट्स से 30%, it is the time for me to top up, to accumulate that. मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो टिप पे इन्वेस्ट करेंगे, जब गिर जाएगा तब डरेंगे और बेच देंगे, राइट? तो वो जो रिसर्च है ना, हार्डकोर रिसर्च, उसका बेस्ट एडवांटेज यही है कि यू गेट दैट कन्विक्शन, एंड दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। इफ यू सी पीपल, एनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इफ यू टेक देयर कोर इज द हार्डकोर रिसर्च टू लर्न अबाउट द कंपनी, एंड द बेस्ट पार्ट इज हम इंडियन मार्केट को ट्रैक करेंगे, इकोनॉमी को, तो विल गेट द ब्रॉडर व्यू, बट सेक्टर स्पेसिफिक जाना है, कंपनी स्पेसिफिक जाना है, दैट यू ओनली गेट व्हेन यू डीप डाइव into the annual reports, the investor presentation. In fact, you can even deep dive into the con calls. That will be very hardcore, as in tracking the analyst call, and because that gives huge amount of insight. Every quarter you have those analyst meet, right? So con calls hoti, conference calls, so you get the documents, right? But yeah, I mean, these 3-4 things. You attended any AGM personally? No, I don't have that. मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है. I make sure कि I at least scroll through the con calls. अच्छा, मिनट्स ऑफ मीटिंग की क्या-क्या बात हुई, क्या-क्या टॉपिक। हाँ. But वो बहुत ज्यादा हो जाता है यार, क्योंकि इतना टाइम निकालना it's difficult. I remember, मैं तो गया था, बट दिल्ली में लकीली यहाँ पे काफी हो रहा था, तो मुझे पता था कि कंपनी एजीएम हुई है, मैं एक दो पहले शेयर उठा लेता था, तो आई यूज्ड टू गो टू द एजीएम, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आई रियलाइज कि एटलीस्ट इन दिल्ली मेजॉरिटी लोग उस समय बस फ्री खाने और फ्री स्टफ के लिए आ रहे थे। ये एक्चुअली लेजिट। और एक एजीएम में बड़ा बुरा मान गए थे, क्योंकि उस समय आई थिंक इन्वेस्टर को कुछ खाने के डब्बे वब्बे नहीं दिए। अच्छा। ये भी होता है। ठीक है, एक तो साहिल यू राइट, बिकॉज आई फील कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना, एक आदमी गाड़ी में, जब कोई भी इंडियन एवरेज गाड़ी खरीदते हैं ना, वो गाड़ी में एक्सपर्ट हो जाता है उस लेवल पे कि भारत 6 का इंजन क्या है, वो इंजन क्या है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है, उसमें ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ये है वो है। तो इफ यू हैव दैट सेम एक्साइटमेंट टू बाय स्टॉक व्हिच यू शुड, तो ऑटोमेटिकली गोना बी अ केक वॉक, मजा आएगा करने में। अब आपने बोला कि आप कंपनी में डीप डाइविंग रिसर्च करते हो, सो व्हाट आर द, सपोज लेट्स टेक अ कंपनी, विप्रो लेते हैं एग्जांपल। विप्रो है, विप्रो को आपने सोचा कंपनी रिसर्च करनी, तो आप इसके क्या क्या चीजें देखोगे सो दैट कि जो लिसनर को व्यू पॉइंट मिले कि हाँ ये चीजें मुझे रिसर्च इकट्ठी करनी है, व्हाट विल यू लुक एट? So I think सबसे पहले तो I look at the leadership, who is leading it, right? Because that is very important. I strongly believe कि leader is the anchor of the company, right? तो अगर leader, and there are 2 qualities that I look at the leader: competency and honesty and integrity. How do you judge it? This is the most difficult part. So I tell you, this is the most difficult part, and you can't be 100% right. Obviously किसी के दिमाग में तो आप नहीं घुस सकते हो, तो कॉम्पिटेंसी तो यू कैन स्टिल सी यार एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से कर रहे हैं, राइट? बट द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच आई सेड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, वो पता है कैसे पता चलता है? उसके लिए ना थोड़ा सा एक गट फीलिंग आती है। आप एंड फॉर दैट यू कैन वॉच द वीडियोस, इफ यू कैन एक्सेस दोज वीडियोस ऑफ इंटरव्यू होते हैं ना यूट्यूब पे, आप उनके वीडियोस, तो उनकी वो जो बोलने का तरीका है, वो जो बोलते हैं ना जिस तरह से,
उनसे काफी चीजें पता पड़ती है, उनकी लाइफस्टाइल को अगर आप देख सकते हो, आई थिंक दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द फाउंडर. This is actually फॉर a very एग्जाम्पल, interesting lifestyle. ये बहुत lifestyle is very important because we have seen cases what happened in the past, people with very flashy lifestyle, how they ended up ruining the company. And you know, people like Ratan Tata, people like Narayan Murthy, they are the real inspiration. Azim Premji, Ekdam yeah. simple living, and you know, it's all about contributing towards the society. I think that kind of people, you know, I mean, that is very difficult. आज के date में, if you ask me, especially the professional CEOs and all of that, वो होना, एक कंपनी को बच्चे की तरह देखना और यू नो उसके अंदर एकदम गवर्नेंस 100% कोर गवर्नेंस होना, that is very difficult. But if you can find that, I think that nothing better than that, especially the, you know, company. And that is one of the reasons why people always say that you should have blue chip stocks in your portfolio, because they are the companies that have proven that, you know, they have got a very good strong corporate governance. कोई कंपनी 2 लाख 5 लाख करोड़ की ऐसे नहीं बन जाती. बट सर You have to have. जैसे कि सबसे पहले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट 100% एग्रीड. एक तो आईडीएफसी, मुझे बताऊं, आईडीएफसी स्टॉक आई रियली लाइक बिकॉज ऑफ मिस्टर वैद्यनाथन. मुझे वो, आई एम अ ह्यूज एडमायरर एंड आई फील कि उनमें जो 3 चीज आपने बोली, ठीक है, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कूट कूट के भरी हुई है, राइट? बिल्कुल. दिस वाज आई थिंक अ वेरी ब्रिलियंट इनसाइट टू सी कि लाइफस्टाइल ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर. एक मैं भी यूज करता हूँ ना, वो ये है कि इफ द CEO of the company is more famous than the company, इसका मतलब the company is dependent. ठीक है, जैसे I don't think Facebook Meta would be same without Mark Zuckerberg और Tesla would be same without Elon Musk. तो एक मेरा ही है. But इसमें एक और चीज बड़ी मतलब मेजर आ जाती है कि अब बहुत लोगों का आर्गुमेंट ये है कि अगर हम मैनेजमेंट देख रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी सब्जेक्टिव एंड यू कैन गो रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्वांटिफाइबल नहीं है, तो उससे बेटर तो ये है ना कि प्रोफेशनली हेल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करो, लाइक L&T, लाइक HDFC. What do you think of those? So I think both approaches are right. And I agree कि होता क्या है, अच्छा एक I believe कि यार एक फैमिली रन बिजनेस होता है ना, उसमें एक वो फीलिंग ज्यादा होती है कंपनी के लिए कि फॉर एग्जांपल लेट्स से विप्रो और लेट्स से HCL का शिव नाडर थे एंड नाउ हिज डॉटर रोशनी नाडर इज लीडिंग इट. तो आई ऑल्सो लुक एट दिस एस्पेक्ट कि वो कंपनी को जो चला रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन मेंबर है क्या फैमिली के. एंड आई हैव सीन दिस पैटर्न कि जो कंपनीज का फर्स्ट जनरेशन ने थोड़ा भी सक्सेसफुल चलाया है ना, एंड उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेके आ रहे हैं, एक अच्छा एक्सपोजर लेके आ रहे हैं, वो सेकंड जनरेशन उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, या थर्ड जनरेशन उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले, क्योंकि एक होता है ना कि यार आपकी फैमिली की कंपनी है, इट्स अ फैमिली रन बिजनेस. तो दैट इज वन थिंग. एंड अगेन देयर आर प्रॉज एंड कॉन्स, बिकॉज प्रोफेशनली रन कंपनी है तो उसके भी प्रॉज ये हैं कि obviously it is run by professional, but in general if you see every company, even if it is a family run business or professional, they have got board of directors and all of that, so that governance can you know, that can be taken care, whether it is family run or corporate. But I any day prefer, especially in India, we have not reached that level. Obviously now with the recent startups, obviously सारा पैसा fund हो रहा है, तो now there is more of you know, professional run companies, but जो historically हमारे इंडिया में है, they are more of family run business. So for example अभी Infosys का देखें तो what happened कि वो जो transition आया था ना नारायण मूर्ति के बाद विशाल सिक्का, that was very painful, right? विशाल सिक्का had to quit and then Salil Parekh he joined. तो वो although again Infosys is such a huge company, they had that every corporate governance setup था, everything was there, so it was able to pull off, right? Similarly HDFC में it is run by professionals, so that way again there is no problem. But both approaches are good. I prefer family run business and you know, जिसका एक अच्छी history है, and but yeah, I also go with corporate business. So ऐसा नहीं कि I'll pick only one of that. ठीक है, and agreed. हाँ, जैसे I think जो family का है ना, मेरे हिसाब से second generation is the one who really takes it big. तो Jubilant Foods में भी same है, Raymond's में भी same है, तो ये एक trend है. Look at that. Yeah. There are a lot of examples. Yeah. Lot of examples. ठीक है. तो top level में ये तो I think काफी interesting था. तो look at the how to analyze a company में उसको क्या देखना है, मैनेजमेंट, इनका कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लाइफस्टाइल, ठीक है. अगर प्रोफेशनली हेल्ड कंपनी है तभी भी इट्स गुड, ठीक है. सेकंड जनरेशन इट्स बेटर, हिस्टोरिकली इट्स एटलीस्ट इट्स बेटर. एंड एक इंटरव्यूज देखो टू गेट अ सेंस की क्या उनमें ऑप्टिमिज्म है, क्या नेचर है, व्हाट इज देयर विजन अबाउट द कंपनी. राइट. टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. अब व्हाट इज द सेकंड थिंग अगेन लुक एट द बिजनेस की कंपनी करती क्या है, उसका धंधा कैसे चलता है, वो प्रॉफिट कैसे कमाती है. तो वो जो ब्रेकअप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एनी एग्जांपल,
लेट्स से डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो वो करती क्या है कि यार उसका बिजनेस लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लाइटिंग में है, तो वो टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है या वो बल्ब्स एंड एलईडीज मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका ब्रेकअप क्या है, कौन सा पैसा कहां से आ रहा है, तो वो सेगमेंट ब्रेकअप और कौन सा सेगमेंट कितना प्रॉफिटेबल है, उसका मार्जिन कितने हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग होना, तो अगेन वो फिर पूरा फाइनेंशियल्स पे आ जाएगा। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस की वो पैसा, उसका मॉडल क्या है बिजनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल समझना। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम जस्ट बिकॉज फाउंडर इज वेरी पॉपुलर, लॉट पीपल गेट दे फील लाइक इन्वेस्टिंग, राइट, बट वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है कि हम बिजनेस ही नहीं समझ पाते, तो वो समझना बहुत जरूरी है। व्हेन आई से अंडरस्टैंड द बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव आल्सो, कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है, लॉन्ग टर्म में उसके क्या एस्पेक्ट है, कि यार अगर ये लेट्स से डिक्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है तो उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, राइट। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट आई वुड से ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एक्चुअल में उसका ब्रेकअप क्या है, वो क्या है। फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट आईटीसी, कि यार व्हाट हैपेंड इज ऑन वन साइड सारी एफएमसीजी कंपनी पहले इन लास्ट 3-4 years एक्सेप्ट द 3-4 months अभी का छोड़ दे, तो एफएमसीजी कंपनीज हैव डन वेरी वेल, बी इट योर HUL, बी इट योर नेस्ले एंड ऑल ऑफ दैट, बट एफएमसीजी में आईटीसी नहीं चल रहा था बिकॉज आईटीसी का मेजर बिजनेस इज फ्रॉम टोबैको, नाउ इट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टोबैको टू द एफएमसीजी, तो दिस इज द डिफरेंस। तो वो अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप समझ पाओगे कि इसका बिजनेस क्या है, कि आपका रेवेन्यू कहां से आ रहा है, लेट्स से आपका इंडिया से आ रहा है, आपका फॉरेन से आ रहा है, तो वो बहुत उससे फिर आपको रिस्क एस्पेक्ट भी समझने पड़ते हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज बिजनेस ब्रेकअप, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, क्या सर्विस लाइंस है, रेवेन्यू कहां से आता है, तो ये सारी डिटेल समझना बहुत जरूरी है। राइट, बेसिकली मतलब आई थिंक व्हाट इज द इजीएस्ट वे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, जस्ट थिंक यू आर a judge of in Shark Tank, and वो बंदा कंप्लीट, तो you will automatically ask the right questions and assess that way, and you're right, वो बिजनेस को समझना इसका मतलब नहीं है कि हर एक डिटेल क्या है, बट ब्रॉड स्ट्रक्चर कि अच्छा ये रॉ मटेरियल होता है, खुद ही मैप में दिमाग होगा कि अच्छा ये रॉ मटेरियल इधर से आ रहा है तो यहाँ पे ये कुछ हो सकता है, या फिर ये कंसर्न है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। बट अब सर इसमें ना अब एक और चीज आती है, अब अंडरस्टैंड बिजनेस में अब एक कॉमन कंसर्न है व्हेन यू कंपेयर टू बिजनेसेस, ठीक, तो सपोज अब लोग बहुत गलती क्या कर देते हैं कि वो सपोज एग्जांपल दे विल कंपेयर DLF टू मारुति सुजुकी, व्हिच इज मतलब डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि बिजनेस अलग है, वो ऑटोमोबाइल है, वो रियल एस्टेट है, वो स्केलेबिलिटी फैक्टर सब कुछ डिफरेंट है, यू कांट, इट्स लाइक कंपेयरिंग अ फोन टू मोबाइल, ये माउस, राइट। अब हर बिजनेस को कंपैरिजन लेवल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आई विल लुक एट कासा, आई विल लुक एट NPA लेवल्स, अगर मैं आईटी में देखूं इन्फोसिस TCS पे, तो मैं देखूंगा उनका IND रेवेन्यू कितना है, US रेवेन्यू कितना है, और कांस्टेंट करेंसी के ऐसा ना हो कि उनके इन्फ्लेशन से उनके प्रॉफिट्स बहुत ब्लोटेड लग रहे हैं, मतलब वो रूपी डिप्रिशिएटिंग से। सो हाउ टू, ये बहुत लोगों का कंसर्न है कि अब कोई सपोज उनकी इंडस्ट्री पकड़ी, अब हाउ टू अंडरस्टैंड कि यार उस इंडस्ट्री की क्या की एलिमेंट्स हैं और क्या की फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस में यू शुड कंपेयर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक हर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रॉब्लम ये, और ये सबके साथ प्रॉब्लम है, कोई भी इन्वेस्टर को देखोगे ना तो इन जनरल आप सोचोगे यार बैंकिंग में, बहुत लोग कहते हैं सर बैंकिंग का डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, वो इट डजंट मेक सेंस फॉर बैंकिंग, हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी, एंड आई थिंक उसका एक ही सोल्यूशन, एक सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है, यू फाइंड दैट कोर्स एंड मेंटोर जो आपको गाइड कर सके कि यार ये KPIs आपको, क्योंकि होता है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जब सर्च करोगे ना गूगल इंटरनेट पे, तो वो बहुत कियोस मिलेगा दिमाग में, lot of noise also, yeah, there's lot of noise and you don't get that right information, and it's a way, I mean आपका टाइम और एनर्जी और एफर्ट इतना ज्यादा जाएगा ना to get to that right information. So I think उसका एक सबसे अच्छा solution ये है कि you get a mentor and get a right course that teaches you कि यार ये KPIs इस सेक्टर में लगते हैं, उसके बाद again next is the research that you got to do. But yeah, this is very important point कि investing का एक rule है कि there is no one size fit all, कि यार आपके लिए हो सकता है इक्विटी अच्छी हो, किसी के लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड, किसी के लिए FD, किसी के लिए पोस्ट ऑफिस विद इन स्टॉक, किसी के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, और अगेन उसके अंदर भी देयर आर thousands of bifurcation. So this is very important to understand what is your requirement and accordingly decide कि हाँ ये कौन से, and again it is not an overnight journey. ऐसा नहीं है, honestly मेरे केस में था, banking was very complicated for me to understand. आपके फादर हैं तो बैंकिंग से काफी आपको this is a general notion कि ऐसा
होता है, बट मेरे पापा घर आके मेरे से कासा की बात नहीं करते। राइट, तो वो कभी वो हमारा डिस्कशन ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीजें खुद से सीखी, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंश्योरेंस की बात करें तो देयर इज आईपीओ, एलआईसी आईपीओ का, तो अब लोगों को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के केपीआईज बिल्कुल ही अलग, तो वो लोगों को नहीं आते हैं। तो ये तो देखो यार, यू हैव टू स्पेंड टाइम टू लर्न अबाउट इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो है, आई थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर आंसर्स की मोटिवेशन, बट इफ यू वांट रियलिटी तो यही है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। एंड आई थिंक यू राइट, या तो यू कैन बी दैट वन हु स्पेंड्स इयर्स एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड यू लकी यू कैन, बट स्मार्ट मूव क्या है, गो टू समवन, फाइंड अ मेंटर जो आपको गाइड कर पाए। Right. मैं बताऊं, ये भी होता है कि स्टॉक मार्केट में यू शुड कनेक्ट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज सबका एक अपना ओपिनियन और बायस होता है ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो जैसे अब यूर ऑल्सो फंडामेंटलिस्ट, मैं फंडामेंटल करता हूँ, बट आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स में हमारा डिफरेंट ओपिनियन होगा, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा भी डिफरेंट है, सब कुछ। तो आई थिंक नो वन शुड एक्सपेक्ट कि हर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एक ही टाइप का आंसर दे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड यू आर वेरी राइट कि आप 10 लोगों से मिलोगे ना, 10 लोगों से बात करोगे तो आपको सबके थॉट प्रोसेस पता पड़ेंगे, यू गेट टू नो वेरियस व्यूज, एंड उसके बाद आपका भी एक माइंडसेट बिल्ड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंक्लूड एवरीथिंग, इफ यू वांट टू गेट स्टार्ट इन फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहला रिकमेंडेशन व्हिच आई कंप्लीटली एग्री विद साहिल, गेट अ प्रॉपर कोर्स, जिससे आप इसको यू कैन रीच आउट टू पर्सन, आपको मेंटर टाइप से फील आता हो, यू कैन फील लाइक कनेक्ट, सो दैट आपको डायरेक्शन मिले कि किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना है। सेकेंड, अंडरस्टैंड द व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, और बस न्यूज पढ़ो, बेसिक चीजें पढ़ो, आपको आइडिया पड़ जाएगा विद टाइम, वो डॉट्स कनेक्ट कर जाएंगी, हो टाइम लगेगा बट हो जरूर जाएंगी। थर्ड, कंपनी में घुसने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट देखो, उनका क्या देखना है, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आप उनका लाइफस्टाइल देख सकते हो, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, आपको बहुत ढूंढने को सब कुछ मिल जाएगा। एंड उसके बाद यू डायरेक्टली गो इनटू द टाइप ऑफ बिजनेस का बिजनेस मॉडल क्या है, एंड अगर इसके और भी आपको डीप में जाना है तो अगेन it is recommended that you go with a program so that time कम लगेगा and you will face less noise. Absolutely. I completely agree. अच्छा, अब साहिल एक और चीज, अब देखो, we have to talk about the elephant in the room. आपने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, मैं बात करने वाला हूँ LIC IPO के बारे में, ठीक है? अब अभी आई थिंक जब this podcast will be out, the LIC IPO would already been launched, right? Okay. So what have you studied? Have you got the time to study about the LIC IPO? Yes, I just studied LIC IPO in the morning. Yeah, so. अच्छा, we going through DHRP report? Yeah. So what's your take on it? I know अभी आपका पूरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है, but still. हाँ. So based on my study, जितना मैंने अभी तक समझा है, what happened is, see, few points. First of all, अगर हम LIC IPO की business की बात करें, it's a giant, right? It's a elephant in the business, as in it's got more than 60% market share in the insurance sector, which is crazy. It is the fifth largest insurance company in the world. In the world, yeah. Exactly. So they've got, I read कि they've got more than, I mean, around 13.5 lakh agents all over the world. I mean, ऐसा होता है ना, हर गली में आपको एक LIC का एजेंट मिलता है। मतलब अगर कोई पूछना या जिंदगी का क्या भरोसा है, तो LIC एजेंट समझ लो, LIC एजेंट है वो। Absolutely. So it's huge, no doubt about it. But again, problem क्या है? Problem ये है कि there are a lot of private players that have come up, right? Yeah. And they are eating the market. तो ये एक problem है, but again ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी survive करेगी. The biggest thing is कि if you look at the life insurance sector in India, I believe कि बहुत underpenetrated है. Although हम देखते हैं कि यार हर घर में एक LIC होती है पॉलिसी, बट वो जो पॉलिसी है ना वो सही नहीं, क्योंकि आप देखो कोई 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख, ऐसे नहीं होता है। आप अगर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को देखो, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से लोगों ने जो पॉलिसीज ली है ना, वो पॉलिसीज बहुत कम अमाउंट की ली है, तो उसमें बहुत ग्रोथ का स्कोप है, पहली चीज। तो ओवरऑल आई बिलीव कि जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज में, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारी सैलरी लेवल्स बढ़ रहे हैं, हमारी स्पेंडिंग लेवल्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली आई थिंक अब हमको ना वो रियलाइजेशन आ गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड, यार यू नीड टू हैव लाइफ इंश्योरेंस, यू नीड टू हैव मेडिकल इंश्योरेंस। पहले क्या होता था, लोगों से पूछो, अरे यार ऐसे थोड़ा ना यार, हमको कुछ नहीं होगा, मतलब वो एक माइंडसेट है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे LIC हो जाती थी कि अच्छा इन्वेस्टमेंट, हाँ LIC है। तो एक ये भी था कि लॉट ऑफ आई थिंक इंडियंस कंफ्यूज इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ दें, व्हिच इज दिस शुड बी बेटर केप्ट सेपरेट। एंड यू राइट, एक if you compare to developed economies, I feel insurance in the coming decade one of the most powerful and promising sectors है. It is brilliant. But हाँ, private players ना, अब if you see LIC also,
तो इनका आई थिंक दो होता है ना, एक तो एपीआई का और न्यूज बिजनेस प्लान होता है, जो दो टाइप के राइट हाँ, दोनों में एलआईसी ऑफ कोर्स मेजॉरिटी तो है ही, बट इट इज कमिंग डाउन, वेयर एचडीएफसी, एसबीआई, दे आर एक्चुअली जस्ट गेटिंग इनटू इट, प्राइवेट प्लेयर्स सारे. सो वेयर डू यू सी कि आया आफ्टर 10 years डू यू थिंक एलआईसी, मतलब वुड द जेन जी जो अभी सब आ रहे हैं और नेसेसरी व्यूअर्स, वुड दे वांट एन एलआईसी पॉलिसी? बिकॉज एलआईसी का एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन सा बन गया है. इट्स नॉट कूल एलआईसी हैविंग, और एलआईसी का बड़ा प्रीमियम्स आल्सो रिडिकुलसली हाई इफ यू कंपेयर एलआईसी. आई टेल यू वन थिंग कि यार अभी भी हम अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाए ना, तो एक ट्रस्ट इशू है, क्योंकि वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा मिस सेलिंग होती है. तो लोगों के अंदर ना एलआईसी को लेके एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है. दे डोंट ट्रस्ट प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि उनको लगता है आज है कल बंद हो जाएगी. एलआईसी तो इंडियन गवर्नमेंट की है, आज भी है 100 साल बाद भी रहेगी. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर. हम अगर हमारा माइंडसेट ब्रॉडन करें ना, ऑब्वियसली अगर हमसे पूछे तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन आज भी आप गांव में जाओगे टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, दे ट्रस्ट एलआईसी. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. तो वेयर डू सी एलआईसी? डू यू थिंक, मतलब ऑब्वियसली अब आईपीओ खुलेगा तो क्या होगा तो कोई भी नहीं बता सकता, तो पूछने का फायदा भी नहीं है, बट वेयर डू यू सी एलआईसी स्टॉक गोइंग इन द नेक्स्ट, लेट्स से बाय 2025? क्या लग रहा है? 2025? I don't know यार. I tell you one thing that I know. मैं इसकी वैल्यूएशन समझ रहा था एंड आई वाज ब्लोन अवे. आई मीन मैंने जो देखा इसका, जब वो एलआईसी जनवरी में जब जो बूम आया, वो हाइप क्रिएट हुआ था कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, आई समवेयर रेड कि इसका 15 लाख करोड़ समवेयर अराउंड का मार्केट कैप होने वाला है. एंड टुडे मैंने जब देखा आईपीओ के टाइम पे, जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसका मार्केट कैप बहुत कम कर दिया, उसका वैल्यूएशन बहुत कम कर दिया है. तो एक मेट्रिक होती है इंश्योरेंस सेक्टर में, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू. ठीक है. तो पी रेशियो से जनरली हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं कंपेयर करते हैं, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं. और मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू अगर हम एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और इन तीनों की कंपेयर करें एसबीआई लाइफ से, तो एसबीआई लाइफ इन सभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनकी जो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू है समवेयर अराउंड 2.5 टू 3.5 के बीच में, और एलआईसी इसकी मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू ला रहा है 1.1. तो वैल्यूएशन इज अमेजिंग. ये अगर उस टाइम पे ले आते ना, एलआईसी का आईपीओ 50% तक भी क्रैश हो सकता था. बट आज गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज कर ली. आई थिंक दे हैव फैक्टर्ड इन ऑल द पॉसिबल नेगेटिव्स, लेट्स से द वॉर, let's say the inflation, the US Fed and all of that, they have factored in. And आज जो valuation पे ये लेके आ रहे हैं ना, I think from risk reward perspective it is looking very very attractive. Very true, very true. उनका जो market cap है 6 लाख करोड़ का है, और उनकी embedded value भी somewhere around 5.5 लाख करोड़. तो जो 1.1 का कुछ market cap to embedded value का ratio निकाला है मैंने, I think that is looking very very attractive. तो ये एक बहुत important parameter मुझे समझ में आया है. And that is one reason, क्योंकि मैंने like I said कि पहले गवर्नमेंट 15 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे लॉन्च करने का प्लान था, और अभी 6 लाख पे आ गई है. तो जो डाउनवर्ड रिस्क है ना, आई थिंक वो बहुत कम हो गई है. अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, बिकॉज आई रिमेंबर मैं तो उनकी डीएचआर पे रिपोर्ट एलआईसी की पढ़ी थी, अभी महीने भर पहले आ गई थी, और क्वाइट बैक तो तब पढ़ी थी. बट आई जस्ट नो द डेट्स, बट आई डोंट नो कि उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन कम कर दिया उसका. एग्जैक्टली. आई ऑलवेज थॉट कि 15 लाख करोड़ पे ही आ रहा है. राइट. अभी 6 लाख कर दिया है. जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट कितना 50% से भी कम कर दिया है वैल्यूएशन. इट्स एक्चुअली क्वाइट अ स्मार्ट मूव कि गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो भी खत्म होता है, एंड सीइंग द करंट मार्केट सिचुएशन, ये चांसेस थे कि पूरा अब्सॉर्ब आईपीओ ना हो पाए. एग्जैक्टली करेंगे. दिस इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट. तो दैट इज वे आई थिंक मैंने जो पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट वाज टारगेटिंग टू रेज समवेयर अराउंड 60,000 करोड़ फ्रॉम दिस आईपीओ, लेकिन अब वो सिर्फ 20-21 हजार करोड़ पे ही का ही पैसा रेज कर रही है. तो गवर्नमेंट ने वो कट डाउन किया है, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट मूव किया है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव रखी है, क्योंकि इससे क्या इन्वेस्टर को भी एक कंफर्ट मिलेगा. और वो अभी क्या ना, वो फीलिंग आ गई यार, पेटीएम और ये जो आईपीओ बस्ट हुए ना, उसके बाद की यार एवरीवन इज कमिंग एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए. तो आई थिंक वो एक नोशन यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए. और हाँ, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि डोंट लुक एट इट एज अ लिस्टिंग गेन थिंग. वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे को ये कि लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू गिव डिसेंट रिटर्न, क्योंकि आज की डेट में इसका वैल्यूएशन इन्होंने इतना रीजनेबल रख दिया है. चलो मैं भी देखता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होगा. एंड यू राइट, एक तो जो विच पीपल आस्क लिस्टिंग डे गेन, तो मैं लगता है भाई इससे पहले तू गैम्बल ही कर ले, ड्रीम 11 डाउनलोड कर लो, बिकॉज नोबडी नोस लिस्टिंग होगा नहीं होगा, कोई बता नहीं सकता. जैसे बार्बिक्यू नेशन, इफ यू रिमेंबर, उसका आईपीओ इट्स नॉट फंडामेंटली स्ट्रांग, उसका लिस्टिंग गेन वाज देयर, राइट? जोमैटो का था, पेटीएम का, तो इसका कोई वो अभी मेरे को ना बहुत लोग कहते हैं
कि साहिल तुमने ये बताया था कि ये स्टॉक में मत लगाओ, आईपीओ में मत लगाओ, लेकिन ये तो इसने तो लिस्टिंग गेन दे दिया। एंड स्पेशली जोमैटो के बाद तो इतना हुआ था कि मेरा एक ही कंसर्न था कि यार जोमैटो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, देयर इज नो डाउट, बट वैल्यूएशन महंगा था। उस टाइम पे मैंने ये बोला था। या And वैल्यूएशन especially- इट इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, मतलब वही वैल्यूएशन इट गोज आउट ऑफ द विंडो की मेन प्रॉफिट नहीं हो रहा और है। उस टाइम पे लोगों ने कमेंट किए कि यार तुमने मना करा, अब देखो कहाँ पहुंच गया है, मेरे फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट कर दिया देखो, और फिर अब देख लो वापस वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, राइट। तो वही पॉइंट है कि यार वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जो ये जो 2021 की जो का बुल रन था ना, इसमें लोगों ने वैल्यूएशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, मजाक हो गया एक्चुअली, मजाक हो गया, एक्चुअली मजाक हो गया। मजाक सा बट आई थिंक वो वापस से, और वो होना ही था, इवेंचुअली होना था कि 2022 आया और जब चीजें रियलाइजेशन हुई तो लगा कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट। बट सर यू ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये ना ऐसे जैसे आज मैं जोमेटो आईपीओ में भी तो मैंने जो मेरा टेक था ये था कि फंडामेंटली एनालाइज करें क्या जब कुछ प्रॉफिट ही नहीं है तो पीवी मतलब क्या बात करें। हाँ तो अगेन आई वाज वेरी क्लियर कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। तो यूट्यूब कमेंट्स में बहुत बार आते हैं कि यार बिकॉज ऑफ यू वी मेड दिस। तो एक इंडियंस में एक आदत है टू ब्लेम द अदर पर्सन। तो आई थिंक एक ये भी बहुत मेजर चीज है सबको रियलाइज करनी चाहिए कि अगर कोई आप साहिल की वीडियो देख रहे हो मेरी देख रहे हो तो इट इज जस्ट टू गाइड यू। सबसे पहले कोई बता नहीं रहा कि आपको ये करना चाहिए, Correct, correct. हैव टू टेक योर डिसीजन। एंड आई थिंक पुटिंग द ये कि इंडियन हैबिट है ना कि गलती बिल्कुल, किसकी है, to blame. गलती किसकी है। लॉस हुआ मतलब सामने वाले को ब्लेम करना ही है, वो अपने ऊपर ब्लेम लेना ही और नहीं। प्रॉफिट हुआ इसका मतलब मैं स्मार्ट हूँ। हाँ ये मेरे को इतने वीडियो में बोलना पड़ता है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप खुद रिसर्च करो। उसके बाद भी आई रिमेम्बर लोग आएंगे, ये वीडियो बनाया इसके बाद इतना रिटर्न, एंड दे विल जज यू विद इन द नेक्स्ट विद इन वन डे कि आज वीडियो बनाया कल क्या है, उसके बेसिस पे दे विल जज यू। आई रियली फील यार कि यार इतनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना तो बहुत हो गया। अरे मतलब you मैंने believe आज it? ये अराउंड एक डेढ़ महीने पहले तो टेक्निकली मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, ठीक है। तो मैंने एक डेढ़ महीने पहले अपना 70% पोर्टफोलियो बेच चुका था। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं ऐसे ऐसे करके पोर्टफोलियो बेच चुका हूँ एंड 70% बेच चुका हूँ। आई थिंक फ्राइडे को थी वो, मंडे को मार्केट्स वेंट अप। लो फिर एक दो लोग अरे भाई क्या बोल रहा है, मार्केट से ऊपर चले गए, गलती नहीं। मैंने कि भाई ब्रो एक दिन हुआ है, रुक तो जा, थोड़ा तो सफर कर ले लाइफ में, एक दिन में क्या हो जाएगा। और वो भी 12 बजे ही कमेंट आ गया था, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, ट्रेडिंग भी पूरा नहीं हुआ था। तो यू राइट, ये तो है, ये तो है। बट हाँ विद टाइम आई फील देयर आर सर्टेन लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली इसको रियलाइज करके इंप्रूव कर रहे हैं। बट एक स्टिल एक सो यार उसको बाकी है, मार्केट्स बाहर से ग्लैमरस बहुत ज्यादा है ना, ये उसको मार्केट्स बाहर से ग्लैमरस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और लाइक ये एक इसी इंडस्ट्री में यूनिक चीज है, ये बाहर से इतना ग्लैमरस है बट रियलिटी में इट्स लाइक एज डिफिकल्ट एज एनी इंडस्ट्री। ऐसा मतलब सब जिसमें मेहनत है बट उसको बाहर से पोर्ट्रे ऐसा किया गया, आई थिंक बिकॉज ऑफ मूवीज एंड बिकॉज ऑफ वेब सीरीज कि यार यहाँ तो बस मार्केट्स में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मर्सिडीज, यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी, पार्टी चल रही है, लोगों के दिमाग में शायद आता है यही है। And I think मैंने जो एक कोट जो आई एम श्योर बहुत कॉमन है कि रियल इन्वेस्टिंग इज बोरिंग, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर फन गो टू वेगस। तो ये बहुत ही सही है कि यार रियल इन्वेस्टमेंट बोरिंग है, लोग उसमें इतना वो कर देते हैं, आज रिटर्न कल रिटर्न, तो वो जो एस्पेक्ट है ना लॉन्ग टर्म में वो डाइल्यूट हो जाता है। जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो हमने बात करी ना शुरू में कि हमारा माइंड ऐसा बिल्ड है कि वी नीड रिवॉर्ड्स इन शॉर्ट टर्म, तो वो स्टॉक में भी एप्लीकेबल होता है कि एक हफ्ता, एक महीना, 3 महीना स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, बेच दो, वो प्रॉब्लम रहेगी एंड वी चेज रिटर्न। You're right. Investing is, I think, ये किसका कोड भी था कि it's the most boring and rewarding profession. और एक ये है ना कि a good investor is that investor who forgets his trading account password. मतलब अरे actually it is so true. एक actual investor को शायद उसको लिखना पड़ जाएगा कि पासवर्ड क्या था क्या नहीं है, and it takes a lot of patience. But हाँ, I think with time ना लोग अभी तो सब फ्रेश आए हैं, 1-1.5 साल हो गया सबको, तो थोड़ा मेजॉरिटी आई वुड से लिटिल रेस्टलेस, जो अंडरस्टैंडेबल है, बुल रन में तो हो जाता है, बट विद टाइम आई थिंक एवरीवन विल रियलाइज इट। अब मुझे बताओ करंट मार्केट्स का बात करें तो फाइनली पूछते हैं करंट मार्केट्स में क्या लग रहा है, व्हाट इज वेयर डू यू सी द मार्केट्स हेडेड इन द कमिंग ईयर, फॉर दिस ईयर और इन द कमिंग ईयर, अब क्या लगता है? So I've been saying this thing for a long time now कि markets are going to remain volatile. It is no hidden secret. सबको पता है markets volatile रहेंगे और उसका बहुत simple reason है inflation, not just in India, in US also, and US Fed का जो stand रहेगा कि to control that. See, try to understand हुआ क्या। जब COVID hit हुआ, businesses बंद हो गए इंडिया में, US में, right? उस वक्त I think जो market गिरा था ना 30-40%, वो
इमीडिएटली इसीलिए बढ़ा क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने बहुत बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पंप कर दिया, स्टिमुलस भर दिया था। हाँ, तो वो मार्केट इट वाज नॉट सपोज्ड टू रिकवर फॉर ऑलमोस्ट 6 months और 1 year until we come out of COVID. That was the expectation, right? सभी लोग शॉक थे, आई मीन आई एम श्योर एवरीवन, राइट, कि यार यार द हाफ ऑफ 2020 वी वर जस्ट मतलब इट वाज लाइक अ पेशेंट जिसके हाथ पे टूटे हुए हैं बट हाँ। उसको स्टेरॉइड्स दे दिए और वो भाग रहा है, बस, अब देखिए कब तक भाग रहा है, मतलब फंडामेंटली ही शुड नॉट रन एनीमोर, राइट, एग्जैक्टली, राइट। तो वही हुआ, दे पंप डॉलर्स, बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स, तो एंड दे वर राइट एट देयर प्लेस बिकॉज बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था खाने का, लोग उनको अगर वो पंप नहीं करते तो I mean, I don't know how many people would have lost their jobs, how many companies would have gone bankrupt. So they had to do this. एक sudden fall would have affected lives like crazy. Yeah, तो इसलिए आरबीआई का ना हल्के हल्के चढ़े और हल्के हल्के ऊपर जाए. You're right. Right. तो every government has that plan कि वो इसी तरह से चले. तो US Fed में भी वही हुआ, इंडिया में भी. तो look at this, what is happening यार, इतना इन्फ्लेशन हो गया यार, महंगाई कहाँ चली गई है. Look at oil prices, look at everything, right? So crazy यार. I think everyone कब सबको घर में सुनाई दे रहा है कि वेजिटेबल या अब तो यू बाय वेजिटेबल्स, आई रिमेंबर पहले 200-300, अब इट्स लाइक 1000 रुपीस. फ्रूट्स तो 1000-1500 कहीं भी नहीं गए, मतलब दैट्स द बेयर मिनिमम. Yeah, absolutely. It's crazy. So every government has to control inflation. इंडिया में भी करना है, यूएस में भी करना है. आई थिंक यूएस का इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि बहुत पैसा एफआईआई के थ्रू फ्लो होता है, तो अभी भी आई थिंक यूएस में तो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज अभी इन्फ्लेशन इज स्टिल वेरी हाई एंड यूएस फेड को इंटरेस्ट रेट कम करना ही है इवेंचुअली. अभी तो बस वही है आरबीआई की, उन्होंने तो आरबीआई ने आई थिंक अपनी वो ग्रोथ रेट को भी कम फोकस किया, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया. हाँ, तो वो रहेगा. इंडिया में भी वही सिनेरियो है. तो इस सिनेरियो में मार्केट से रिटर्न, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, मार्केट से ज्यादा रिटर्न करना एक्सपेक्ट करना इज नॉट राइट बिकॉज लुक एट अराउंड ना कि यार हो क्या रहा है. रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है. आईटी सेक्टर में लोगों की सैलरीज इतनी बढ़ा चुके हैं कि एट्रिशन इतना ज्यादा है, टैलेंट को रिटेन करना मुश्किल हो रहा है. तो इन जनरल आपके मार्जिन हिट हो रहे हैं, हर कंपनी के मार्जिन हिट हो रहे हैं. तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो आपकी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो कम होगी एंड ऑब्वियसली उसके बाद डाउनग्रेड्स आएंगे. तो दैट वे आई थिंक कि 2022 is going to remain volatile, but the silver lining is that it can be a very good opportunity to create wealth in the long term. 100%. So that is my take. एक चीज है इसमें ना, you're right. मतलब I concur with you. मेरे हिसाब से तो I feel कि जो इतना ओवर इन्फ्लेटेड चीजें चल रही थी, and I could never even imagine कि यार मुझे मार्केट में 11 साल हो गए थे कि 2021 भी मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई, मतलब आई थिंक इन 2021 अलोन 3 or 4 टाइम्स ऑल टाइम हाई टच किया है. एंड फंडामेंटली इट जस्ट देयर इज नो सेंस, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो सेंस टू इट एट ऑल. ठीक है, बट आई थिंक मार्केट्स ऐसे होते हैं. तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मार्केट्स इस साल तो काफी झटके पड़ सकते हैं. बट अब ना बहुत लोग बोलते हैं कि सर कोई नहीं, मैं लॉन्ग टर्म हूँ, अरे सर मैं बेचूंगा नहीं, लॉन्ग टर्म हूँ. एंड ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको मार्केट में 6-7 महीने हुए हैं, राइट. और हो सकता है कि अभी मोटिवेशन लेवल्स बहुत हैं, बट यू सीन द बेयर रन. ठीक है, मैंने भी देखा है. उस समय भगवान से भरोसा उड़ जाता है, मतलब इट्स सो बैड, राइट. इट इज सो बैड कि मतलब हर महीने एसआईपी सोचते वक्त भी लगता है यार ये पैसे डूब रहे हैं, मैं डाल क्यों रहा हूं, मैं व्हाई डोंट आई जस्ट स्पेंड इट, राइट. मतलब वंस यू एक्सपीरियंस इट, यू हैव एक्सपीरियंस इट, वंस यू एक्सपीरियंस इट तब यू नो इट. सो डू यू थिंक लोग जो बोल रहे लॉन्ग टर्म, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू सर्वाइव द बेयर रन? I think 50% of them won't be able to survive. That's being very honest because होता क्या है ना, everyone talks about patience, right? Yeah. But problem क्या है? What is the definition? Patience is, if you look at it in a relative way, किसी के लिए 1 हफ्ता भी बहुत हो गया patience, किसी के लिए 1 महीना भी हो गया, और 3-6 महीने के बाद तो सबका patience खत्म है, right? What we have seen, like 6 महीने हो गए, market is almost stagnant, right? In fact, it has corrected only. तो अभी वो टाइम आ रहा है. इरिटेशन फेज लोग में आ रहा है, कैन सेंस दैट. हाँ. एंड स्पेशली वो लोग जो एफएनओ और इसमें ट्रेड करते हैं ना, जो मार्केट से पैसा लेके लोग इन्वेस्ट करते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंड 2021 में. इट वाज सो क्रेजी. लोग बाहर से पैसा ब्याज पे लेके दे वर इन्वेस्टिंग इन मार्केट. तो इट्स द मोस्ट स्कैरियस्ट सिचुएशन. नेट में पैसा की मार्केट में डालो. नेवर बोरो एंड इन्वेस्ट. एटलीस्ट हैव योर ओन मनी. ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. देयर वर पीपल हु आर डूइंग दिस. बट या लाइक आई सेड कि वो प्रॉब्लम रहेगी. एक पॉइंट पे बहुत लोगों का पेशेंस लेवल जो है वो ब्रेक होगा. एंड दैट इज द रीजन आई से नॉट एवरी पर्सन मेक्स मनी इन स्टॉक मार्केट. ये इतना पेशेंस का गेम है ना इन द लॉन्ग टर्म कि
आपको there's a quote, very good quote, Warren Buffett says, unless you are able to see your portfolio down 50%, don't invest. अगर आपके पोर्टफोलियो को 50% तक नहीं देख सकते ना, don't invest, because वो हमारे अंदर मेंटली, और होता क्या है ना, अच्छी कंपनी भी है, इफ इट इज डाउन हमारे माइंड में नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है. अरे यार आपने आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक क्लासिक एग्जांपल कि यार इट्स नॉट मूविंग सिंस मोर देन 1 year नाउ, इनफैक्ट इट इज डाउन ओनली. तो यार लोगों का भरोसा उठ रहा है. I mean, it is the number one private bank. Look at the 20-year history. Jubilant Foods, मतलब fundamentally it is like God level पे है Jubilant Foods. अभी recently अभी उनका CEO का there was a problem, no? नीचे आ रहा है, and the company खत्म हो गई, बेच दो. यानी कि how can you define a company within 2 months? मतलब वो company सालों साल से चलती आ रही है. Right. So yeah, and I think सर you're right, ये conviction और patience हम I think सब बोलते तो रहते हैं, but इतने heavy words है ना, इनको समझना and इनको experience करना is a different world. Yeah. Altogether, it's different altogether for sure. Yeah. ठीक है, last question Sahil. All right. According to you, in investing, what is the difference between bravery and stupidity? Bravery and stupidity. Well, bravery is all about holding your nerves. I would say कि if stock is down 50%, do you have that conviction to invest at that level? Because very few people have that level of bravery. And stupidity, I would say, is to just chase returns. A lot of people just simply chase return. एक महीने में कितना return है? And in not just about stock market, across asset class. I have seen जब gold बढ़ गया था, everyone was like invest in gold. Gold. Equity में invest, अच्छा return आया 21 में, everyone was like invest in equities. Debt market में ऐसा हो तो basically don't stop chasing return. That's stupidity for me. I think it's quite smart. So bravery, if you're in a fundamentally strong stock and Yes. then you have the courage कि नहीं यार अभी market नीचे, I'm going to invest more. Bravery, I think you're very fairly put it. Stupidity, if you're chasing return, जैसे a lot of people, I think मैं जितने भी crypto investors मिला हूँ personally, I ask them explain me cryptocurrency. Genuinely, I want to know. I don't know cryptocurrency. They cannot explain me. So it would be stupidity that you are investing in something that you don't even understand yourself. कि क्या science क्या है, technology क्या है. Right. Absolutely. Sahil, it was an absolute pleasure talking to you. I think I grilled you a lot. मैं तो question पे question पूछता ही आपको. But I really had fun. I hope you had fun. I loved it, Harsh. Great to have you on. Great to have on your show, and looking forward to next podcast whenever you invite me. 100%. दोस्तों नीचे comment में लिख देना. And you have to follow his YouTube channel also. Check out करना. And Sahil also has got a lot of courses. LinkedIn profile में I saw Sahil की वहाँ पे काफी courses mention है. You can go check out his LinkedIn profile. You can go check out his website. Links सब description में है.